Yes, a very good morning to all of you. Squares and square roots was going on yesterday, so let us continue with that. So we have finished 6.3 now, and we are at 6.4. So before starting 6.4, let us discuss the method of finding the square roots. One more method of finding out the square root. We did two methods. One is the prime factorization, another is the successive subtraction. Right? Now we will do long division method, या जिसको कि हम division method बोलते हैं, to find out the square root. Suppose we are having a number 5776 and we want to find its square root by using division method. Division method बोल देते हैं इसको. So to find the square root of this number by division method, what we have to do? We firstly put it under a proper designing. क्या डिजाइनिंग करनी है हमने? This is 5776. इसको ऐसे, ठीक है? Now from the right side you will make the pairs. This is the first pair. This is the second pair. Always do pairing from the right side. Taking 2 digits at a time, it will form a pair. Now the first 2 digits we are starting number with the help of which we will proceed. This number, with the help of this number, we will proceed. The number is 57. Now you have to think of the number जिसको multiply करके या तो 57 आ जाए या उससे छोटा आ जाए, but same को multiply. इसका मतलब आप 2 को 5 से multiply करके आंसर देखोगे तो गलत है, 7 को 6 से तो गलत है. You have to choose the same number at a time. That means if you are talking about 6, then 6 को 6 से multiply करके देखो 36. छोटा है अभी 57 से काफी. Let us take 7. 7 into 7 49. अभी भी छोटा है, जब तक बड़ा नहीं आ जाता, जब उसके इक्वल नहीं आ जाता, तब तक हम करते जाएंगे. And if I take 8, ये बड़ा आ गया. This is bigger. ये जो है वो 57 से बड़ा है. So 8 can't be our choice. Our choice is to be 7. 7 हमारी choice बनेगी because 7 के साथ multiply करके we are getting 49, which is lesser than 57. Right? चलिए. So 7 आपने choose किया. 7 को कितनी बार लिखना है? 3 बार. This is your answer list. एक answer list में लिखा, 2 हमने यहाँ लिखे. 7 7s are 49. इसको प्लस कर दो. This is 14. 7 plus 7, this is 14. Right? Now do the subtraction. 17 minus 9. Division में जैसे हम subtract करते हैं, same method. This will be 8. और यहाँ से 4 में से 4 गया 0. अब आपके पास 8 आ गया. Every time when you have to get division में जैसे हम ऊपर से नंबर नीचे लेके आते हैं, स्क्वायर रूट में एक रूल होगा कि whenever we are bringing numbers from the upward to the lower direction, we have to take pair always. हमें हमेशा pair को नीचे लेके आना. That means you can't take only 7 alone in the procedure. You have to take total 76. That means both the 2-digit numbers. इसको आपने नीचे 76 को आप नीचे लेके आओगे. ठीक है बेटे? Now it is 6. You have to think of the numbers. 2 numbers ऐसे जिसको same number जिनको multiply करके पीछे 6 आता हो, इसके साथ लिखना है. एक तो वैसे आपको पता ही है 6 6 36 होता है, और दूसरा 4 4 16 होता है. 4 को 4 से multiply करके भी पीछे 6 आता है, 6 को 6 से multiply करके भी पीछे 6 आता है. तो दोनों में से कोई एक हमारी choice बन सकता है. Let us see. Let us go with 4. This is 576. काफी छोटा है. 4 हमारी चॉइस नहीं बन पाया क्योंकि अभी नंबर काफी छोटा है. Let us see whether 6 can become our choice or no. Yes, 6 is going to be our choice because when we are multiplying 6 associating with this number, we are getting 876. This 6 will again be written 3 times. 1, 2, and 3. So you will write in the last. ये चीज जरूर लिखनी है लास्ट में.
square root of 5776, this comes out to be 76. ठीक है, let us do one or two more questions of the same type. Let me take nine along with 6 zeros. Yes, Chen, what do you want to ask? Chen, मैम मेरा एक डाउट है कि जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हमने हमेशा किंक डालनी है कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में किंक डालनी है? एक्चुअली जयंत पता क्या था, जब हम रिवाइज कर रहे थे डाटा हैंडलिंग हम रिवाइज कर नहीं पाए थे, हमारा फर्स्ट रिवीजन टेस्ट आ गया था ना, हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी रिवाइज करी थी। डाटा हैंडलिंग में हमारी 3 एक्सरसाइजेस अभी 2 पड़ी हुई हैं। जैसे ही हमारा अब तो फर्स्ट सेकंड रिवीजन टेस्ट कोई रहा ही नहीं है, जैसे ही हम ये खत्म करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसके बाद क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, देन विल स्टार्ट विद द डाटा हैंडलिंग। प्लेइंग विद नंबर सबसे एंड में करेंगे, ठीक है? ओके मैम। आई विल टेल अकॉर्डिंग विद द क्वेश्चंस। हाँ चलिए, अब देखो दिस इज 206 जीरोस आ गई। अब हमने स्क्वायर रूट निकाला, पेयर बनाओ, पेयरिंग कर ली, 9 बचा। सिंगल नंबर 9 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, काफी छोटा है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सीधा ही 9 मिल रहा है। तो दिस इज योर आंसर लिस्ट। 3 3 3 3 9। अब जब पीछे सारी जीरोस रह गई, आपको पता है आपने डिवीजन करी हुई है, डिवीजन हमने सीखी हुई है। डिवीजन में हम क्या करते थे, अगर हमारे पास नंबर के बीच में जीरोस आ गई तो डिवीजन में उन जीरोस का कोई फायदा नहीं होता था। हम क्या कहते थे, वही जीरो ऊपर से उतार के अपनी आंसर लिस्ट में लिख दो। अब यहाँ पे हर बार हमने क्या कहा था कि हम हर बार 2 डिजिट्स को नीचे उतारेंगे। तो सबसे पहले आपने इन 2 जीरोस को नीचे उतारा, हर 2 जीरोस की आंसर लिस्ट में 1 जीरो रहेगी। दिस इज द रूल ऑफ द स्क्वायर रूट। नेक्स्ट 2 जीरोस उतारी, आंसर लिस्ट में 1 चली गई। नेक्स्ट 2 जीरोस उतारी, आंसर लिस्ट में 1 चली गई। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 3000। यहां से हमने एक प्रॉपर्टी भी करी थी कि अगर किसी नंबर में इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो उसके स्क्वायर रूट में उसकी हाफ जीरोस आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे 6 जीरोस थी, स्क्वायर रूट में 3 आई। अगर किसी नंबर में हमारे पास सपोज 20 जीरोस हैं तो उसके स्क्वायर रूट के आंसर में 10 जीरोस आ जाएंगी। अगर किसी नंबर में हमारे पास 100 जीरोस हैं तो उसके स्क्वायर रूट के आंसर में 50 जीरोस आ जाएंगी। ऑलवेज हाफ जीरोस इफ देयर इज इवन नंबर ऑफ जीरोस। अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन है तब हमारा स्क्वायर रूट के आंसर में जो है वो नंबर ऑफ जीरोस हाफ हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एक और प्रॉपर्टी करते हैं कि अगर हमारे पास किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, इफ वी आर हैविंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट पूरा निकल रहा है, अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर में सपोज 6 डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट के आंसर में 3 डिजिट हो जाएंगे, यानी कि उसके हाफ। अगर हमारे पास किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 9 डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट के आंसर में 9 प्लस 1/2 दैट मीन्स 10/2, दैट मीन्स 5 डिजिट्स होंगे। कैसे याद रखना है कि अगर तो नंबर में डिजिट्स का नंबर इवन है देन नंबर ऑफ द डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 3। अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर इज ऑड, जैसे कि यहाँ पे 9 है, ऑड है नंबर ऑफ डिजिट्स, तब हमारे पास स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड। इवन में सीधा नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और ऑड में नंबर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे इफ देयर आर n डिजिट्स in a number, then how many digits will be in its square root?
if there are n digits in a number, then how many digits will be there in the square root? If n is even, and if n is odd, then if n is even, तो स्क्वायर रूट के आंसर में n by 2 डिजिट होंगे, एंड इफ n is odd, then स्क्वायर रूट के आंसर में n plus 1 by 2 डिजिट होंगे, right? So this you have to remember. Sometimes in MCQ it can be there कि अगर n डिजिट है तो अगर n इवन है तो स्क्वायर रूट में n by 2 हो जाएंगे. जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नंबर में, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में मान लो 8 डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट में 4. अगर एक परफेक्ट स्क्वायर में 11 डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट में 11 plus 1 by 2, 12 by 2, that is 6. This you have to remember. Second question, how many digits will be there in the square root of, how many digits will be there in the square root of 390625? Anyone from the online students? इसके स्क्वायर रूट के आंसर में कितने डिजिट्स होंगे? Anyone? How many digits will be there in the square root of this number? Yes, Tanish, you can give the answer. Tanish. 3. 3, because here the number of the digits in the number are 6. So 6 by 2, that is equal to 3. Shabash. So एक और करते हैं. How many digits will be there in the square root of this? 144 के square root में. Anyone from the online student who want to give the answer? Hurry up, come forward. Somil. Yes, Somil, you tell. Somil, tell the answer. Ma'am, 2. 3 plus 1 by 2, 4 by 2, that means 2, right? 2. This was question number 2. Now let us see that, let us learn that how to find square root of a decimal number. Nothing is difficult or nothing is different, rather I should say, to find the square root of decimal number. Just एक बात हमें याद रखनी है. I'm going to tell you that thing. Let us start with the question. Look at third question, third one. Find the square root of 51.84. हमने 51.84 का स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है. अब एक चीज याद रखना, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर बीच में डेसिमल. आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई पत्थर दिखा, आप उसको उठा के साइड पे रख दो. यही होता है वे. अगर हमें रास्ते में डेसिमल दिखेगा हम उसको उठा के साइड पे रख देंगे. लेट अस सी हाउ. 51.84. लेट अस मेक द पेयर फ्रॉम द बैक साइड. हमने ऐसे बैक से जो है वो उसके पेयरिंग करनी शुरू कर. राइट, दिस इज 51. यू हैव टू थिंक ऑफ द नंबर जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके या तो 51 आ जाए या 51 से छोटा. हमारे पास है 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64. 8 बड़ा हो जाएगा, 7 पे जाएगा. These two are to be added. This is 2. अब ऊपर से 84 नीचे आ रहा है पर रास्ते में पत्थर है. पत्थर को उठाया और यहाँ रख दिया, आंसर लिस्ट में रख दिया. कोई फर्क नहीं है सिंपल स्क्वायर रूट निकालने में और डेसिमल वाले में. सिर्फ पत्थर को उठा के साइड पे रखना. राइट, ऊपर से 84 को नीचे ले आओ. 84 नीचे आओ. अब क्या करेंगे हम, इसके पीछे डिजिट्स लगाएंगे. इसके पीछे 1 लगाओ, 1 से मल्टीप्लाई करो. काफी छोटा है वैसे, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए. 4 चाहिए तो क्या क्या डिजिट लगने के चांसेस हैं? 2 बिकॉज 2 2 जा 4, 8 बिकॉज 8 8 जा 64. यही 2 डिजिट है. 2 से ट्राई करते हैं और बात 2 से ही बन गई. दिस इज 2 2 284. So square root of 51.84, this is equal to 7.2.
51.84 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 7.2। ठीक होगी बात। नाउ आई टोल्ड यू अर्लियर दैट in the previous exercise we have learned that how to find a number which must be multiplied or which must be divided to a given number by a given number to get a perfect square. I told you whenever the question is regarding multiplied or division, by which number we should multiply or by which number we should divide, in that case you will find the square root of a number by prime factorization method. Now we are going to start question number 4, in which it is written what least number must be subtracted from the following number to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square number so formed. अब है कि गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए गिवन नंबर में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो जब सब्ट्रैक्ट की बात आ जाएगी यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। याद रखना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में प्राइम फैक्टराइजेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिवीजन मेथड विल बी अप्लाइड। लेट अस स्टार्ट विद फोर्थ क्वेश्चन। आई एम डूइंग सेकंड पार्ट। 1989 कौन सा नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए so that it becomes a perfect square. So I'm finding its square root by using this method, division method. 19, 18, these are the pair. 19, 3 3s are 9, काफी छोटा है। 4 4s are 16, अभी भी छोटा है। 5 5s are 25, बड़ा हो जाता है। तो हम 4 पे जाएंगे। This is plus 8, ऊपर से 89। अब चांसेस पीछे 9 है तो चांसेस 3 के और 7 के बन रहे। 3 3s are 9, 7 7s are 49। तो पहले 3 से ट्राई करते हैं। लेट अस ट्राई विथ 3। 83 छोटा है अभी काफी। 9 काफी बड़ा हो गया, 9 तक पहुंचना ही नहीं है। 4 पे ट्राई करें। 5 पे बड़ा आ रहा है। 5 पे नंबर बड़ा आ रहा है 389 से। तो विच नंबर विच विल बी आवर चॉइस? 4 विल बी आवर चॉइस। मल्टीप्लाई किया 336, सो इट विल बी 336 ऑन 4। So the remainder it comes out to be 43. जो रिमाइंडर है हमारे पास वो 43 आया। What number should be subtracted? Sorry, it is 53. What number is to be subtracted? जो प्रॉब्लम क्रिएट करता होता है उसी को हम अपनी लाइफ से बाहर निकालेंगे ना, दूसरे बंदे को थोड़ा निकालेंगे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था बट 53 ने प्रॉब्लम क्रिएट की। इसका मतलब विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर? 53। सो 53 should be subtracted from the given number to make it a perfect square. चलो इसमें से 53 से उसने बोला also find the perfect square number so formed and square root of the perfect square number so formed. तो सबसे पहले हम इसमें से 53 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। This becomes 1936. अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। 4 4s are 16, 336, ये 4 पे जाएगा। So what is the perfect square number so formed? 1936. And what is the square root of the perfect square number so formed? This is 44. Square root of the perfect square number so formed comes out to be 44.
सब्ट्रैक्शन में सीधा है, जो रिमाइंडर आया दैट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। रिमाइंडर 53 आया तो 53 को सब्ट्रैक्ट करें। एडिड में थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो मैं बता देती हूँ कि एडिड वाले में आपने कैसे करना है। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ए गिवन नंबर टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। लेट मी टेल यू हाउ टू डू एडिड। चलिए, let us start with the next question. Question number 5. What least number must be added to the given numbers to make it a perfect square? इतनी बात तो क्लियर है कि अगर what must be added वाली बात हो रही है, then we will apply the division method. We are not going to find the square root of the number by prime factorization. Prime factorization से सब हम square root नहीं निकाल सकते. When the question is about finding the square root, or finding what should be added or what should be subtracted. This is 1750 added. So pair किया 16. This is 8150. ऊपर से पेयर नीचे है। अब इसको 2 पे करो तो बड़ा हो जाएगा, शायद 2 पे ही बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 1 पे करना पड़ेगा। 69. What number should be added to the given number to make it a perfect square? अब एक चीज देखो, जब हमने इसका स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं इसका डिवीजन मेथड से, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आया 69, है ना, और आंसर में बना 41। अगर हम 41 का स्क्वायर करें, 41 इंटू 41, दिस इज 1681, यानी कि 41 के स्क्वायर का आंसर जो आ रहा है वो इस नंबर से छोटा है ना। तो हम 42 का स्क्वायर करके देखते हैं। 42 का स्क्वायर 1764। जब हम 42 का स्क्वायर करते हैं, वी गेट ए नंबर विच इज ग्रेटर देन दिस, और हमें इससे ग्रेटर नंबर ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कुछ ऐड होता है तो नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आई वॉन्ट अ नंबर विच शुड बी ग्रेटर देन इट एंड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट शुड बी एडेड? इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर ये बड़ा, ठीक है। सो नंबर टू बी एडेड, ये आंसर आना चाहिए, जबकि वो है उसमें से माइनस करो। नंबर टू बी एडेड इज 14, यानी कि गिवन नंबर में जब हम 14 ऐड करेंगे इट विल बिकम 1764, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। How we know that 1764 is a perfect square number? Because we find it that it is a square of some number. If a number is a square of some number, that is going to be a perfect square number. As this is square of 42, so this is a perfect square. So what number should be added to this to get a perfect square? जो भी आंसर आया उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 14 should be added. अगर वो कहते हैं कि also find द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऑफ होम, तो सीधी सी बात है, इसमें 14 ऐड करोगे वही आ जाएगा 1764। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 42 आ जाएगा। एडेड वाले में आपने एक तरीका याद रखना है कि जो भी आपका आंसर ऊपर आया आपने उससे अगले का भी स्क्वायर करके देखना है, जो बना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट द added number. What number should be added? We will do it like this. ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, ध्यान से देखना इसको। Question number 6. Sixth question.
Find the length of the side of the square whose area is 441 meter square. Area of the square, this is 441 meters. हमें फाइंड करनी है साइड. मैथ्स में जो फाइंड करना होता है बेटे उसको लेट करते हैं. साइड फाइंड करनी है तो हमें हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं साइड दिखनी चाहिए. एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला लगाओ. क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर. फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. We want to find side. Square shifts on another side will become square root. Side is equal to square root of 440. अब यहाँ पे आपको किसी ने नहीं बोलना स्टेटमेंट सम में कि आप जो स्क्वायर रूट है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो या डिवीजन से. आप किसी से भी निकाल सकते हो. 441 का स्क्वायर रूट मैं डिवीजन से निकाल रही हूँ. 2 2 जा 4, पीछे 1 लगाओगे यू विल गेट 41. So 21 meter is the side of the square. 21 meter is the side of the square. सेम इसके जैसा आपके पास एग्जाम्पल भी है. एग्जाम्पल नंबर 14. एग्जाम्पल नंबर 14. Do example number 14 yourself. Have you done the example? Your area is given to be 2304 and you want to find the side. Somil, what answer you are getting? Area is 2304 and you want to find the side. Somil. हम 48 मीटर स्क्वायर आ रही है. 48 meter square नहीं, 48 meter. Side is also always in terms of meter unit. Square unit में area होता है. Side जो है वो single meter में आएगी. Right, Somil? चलिए. So now we are going to start with question number 7. Seventh question is, there is a right angle triangle ABC with right angle B. B पे 90 डिग्री है. बाकी A और C को जहां मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. B ने अपनी स्पेस जो है वो सबसे पहले ऑक्यूपाई कर ली है. B saying I am 90. A and C we can mark anywhere. कहीं पे भी मार्क करो. A and C. AB is 6. BC is 8. Find AC. So we'll continue tomorrow. Well has gone.